ایک ایسا دور جب دنیا بدل رہی تھی۔ 13ویں صدی ایشیا کے میدانوں سے ایک ایسی طاقت اٹھ رہی تھی جس نے کئی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ منگول، ان کے حملے صرف جنگ نہیں ہوتے تھے بلکہ تباہی کی علامت بن چکے تھے۔ شہر جلتے تھے، قلعے ٹوٹ جاتے تھے اور ہزاروں لوگ قتل کر دیے جاتے تھے۔ مسلم دنیا کے کئی علاقے خوف میں مبتلا تھے اور انہی خطرناک حالات میں ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر منگولوں کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ اگر آپ کو ایسی تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ پوری تاریخ بدل دے گا۔ پیدائش اور خاندان۔ سلطان قدس کا اصل نام محمود تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کا تعلق خوارزم شاہی خاندان سے تھا۔ یہ وہی خاندان تھا جو ایک وقت میں وسط ایشیا کی بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ ان کے خاندان کے پاس فوج تھی، دولت تھی اور وسیع علاقے تھے، مگر پھر منگول حملے شروع ہو گئے۔ چنگیز خان کا طوفان۔ چنگیز خان کی فوجیں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ خوارزم شاہی سلطنت نے شروع میں مزاحمت کی، مگر منگولوں کی طاقت بہت خطرناک تھی۔ ایک ایک کر کے شہر گرتے گئے۔ تباہی کا آغاز۔ منگول جب کسی علاقے میں داخل ہوتے تو گھروں کو جلا دیتے، لوگوں کو قتل کرتے اور بچوں تک کو نہیں چھوڑتے تھے۔ خوارزم کی سرزمین بھی اسی آگ میں جلنے لگی۔ ایک شہزادے کی زندگی بدل گئی۔ انہی حملوں کے دوران قدس کا خاندان بکھر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کئی قریبی رشتہ دار مارے گئے اور پھر کم عمر محمود پکڑ لیے گئے۔ قید۔ ایک شاہی خاندان کا بچہ اچانک قیدی بن چکا تھا۔ اس کے سامنے تباہ شہر تھے، جلتے گھر تھے اور چیختے لوگ تھے۔ یہ سب اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہونے لگا۔ غلام بنا دیا گیا۔ منگول قیدیوں کو غلام بنا کر فروخت کرتے تھے۔ قدس بھی انہی میں شامل تھے۔ ایک وقت کا شہزادہ اب غلاموں کی قطار میں کھڑا تھا۔ نام قدس کیسے پڑا؟ روایات میں آتا ہے کہ غلامی کے دوران انہیں قدس کہا جانے لگا۔ یہ نام بعد میں تاریخ میں مشہور ہوا، مگر اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی غلام آگے چل کر سلطان بنے گا۔ لمبا سفر۔ قدس کو دوسرے غلاموں کے ساتھ دور دراز علاقوں میں لے جایا گیا۔ سفر سخت تھا۔ بھوک، پیاس اور مسلسل خوف۔ کئی غلام راستے میں مر جاتے تھے۔ غلاموں کی منڈی۔ آخرکار قدس کو غلاموں کی منڈی میں پیش کیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ طاقتور نوجوان لڑکوں کی قیمت زیادہ لگتی تھی کیونکہ انہیں فوجی غلام بنایا جا سکتا تھا۔ مملوک نظام۔ اس دور میں مصر اور شام میں مملوک نظام مضبوط ہو رہا تھا۔ مملوک اصل میں غلام سپاہی تھے۔ انہیں بچپن سے گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی سکھائی جاتی تھی۔ مصر پہنچنا۔ آخرکار قدس مصر پہنچ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا اہم موڑ تھا کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک غلام سپاہی بن سکتا تھا اور بعض اوقات اقتدار تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ سخت تربیت۔ قدس کو مملوک تربیتی نظام میں شامل کر لیا گیا۔ یہ زندگی آسان نہیں تھی۔ انہیں صبح سے رات تک مشق کروائی جاتی، گھوڑوں پر لڑنا سکھایا جاتا اور جنگی نظم و ضبط سکھایا جاتا۔ غلطی پر سخت سزا ملتی تھی۔ قدس کی شخصیت۔ جلد ہی واضح ہونے لگا کہ قدس عام غلام نہیں، وہ ذہین تھے،
बहादुर थे और दबाव में घबराते नहीं थे। इसी वजह से उनके अफसरान उन पर तवज्जो देने लगे। जंगी महारत, क़द्स खास तौर पर घुड़सवारी, तेज हमले और तलवार के इस्तेमाल में माहिर होते जा रहे थे। वो मुसलसल खुद को बेहतर बना रहे थे। दिल में जलती आग। क़द्स ने बचपन में अपनी सल्तनत की तबाही देखी थी। उन्होंने मंगोल जुल्म देखा था, खानदान बिखरते देखे थे और गुलामी देखी थी। ये सब उनके दिल में एक खामोश आग बन चुका था। मिस्र के हालात। इस वक्त मिस्र में भी हालात मुकम्मल पुरसुकून नहीं थे। सियासी साजिशें जारी थीं और इक़्तिदार के लिए मुख्तलिफ गिरोह लड़ रहे थे, मगर ममलूक फौज मुसलसल ताकतवर हो रही थी। क़द्स का उभार। चंद ही सालों में क़द्स फौज के अंदर अहम होते गए। उनकी बहादुरी और सलाहियत ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। लोग महसूस करने लगे, ये शख्स मुस्तक़बिल में बड़ा किरदार अदा करेगा। एक नया खतरा। इसी दौरान एक बार फिर मंगोल ताकत बढ़ने लगी। चंगेज़ खान मर चुका था, मगर उसकी सल्तनत मजीद फैल रही थी और अब मंगोल इस्लामी दुनिया के मजीद करीब आ रहे थे। बगदाद पर खतरा। खबरें आने लगें कि मंगोल इराक की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमान दुनिया खौफजदा थी, क्योंकि सब जानते थे अगर बगदाद गिर गया तो पूरी इस्लामी दुनिया हल जाएगी। क़द्स की खामोशी। कहा जाता है कि जब क़द्स मंगोलों की खबरें सुनते तो खामोश हो जाते थे, क्योंकि वो जानते थे मंगोल कौन है और वो क्या कर सकते हैं। एक गुलाम जो सब देख रहा था। क़द्स अभी सुल्तान नहीं बने थे, मगर उनका ज़हन बदल चुका था। उनकी शख्सियत सख्त हो चुकी थी और उनके अंदर एक मकसद पैदा हो चुका था। मंगोल ताकत मुसलसल बढ़ रही थी। वस्त एशिया के बाद अब इस्लामी दुनिया के बड़े शहर भी खतरे में आ चुके थे। लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका था और दूसरी तरफ मिस्र में एक साबिक गुलाम अपनी जिंदगी के सबसे अहम मरहले में दाखिल हो रहा था। क़द्स। ममलूक फौज की सख्त जिंदगी। मिस्र पहुंचने के बाद क़द्स को ममलूक फौजी निज़ाम का हिस्सा बना दिया गया। ये आम फौज नहीं थी। ममलूक सिपाहियों को बचपन से तैयार किया जाता, सख्त नज़्म व ज़ब्त में रखा जाता और सिर्फ ताकतवर तरीन जंगजू बनने की तरबियत दी जाती थी। रोज़ाना की तरबियत। क़द्स की जिंदगी अब मुकम्मल बदल चुकी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उन्हें जगा दिया जाता, फिर घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी, नेज़ा चिल्लाना और जंगी हिकमत अमली की मुसलसल मश्क होती। गलती की सज़ा। ममलूक निज़ाम में कमज़ोरी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। गलती पर सख्त सज़ा मिलती, इजाफी मश्क करवाई जाती और बाज़ औक़ात सब के सामने जलील भी किया जाता, मगर यही सख्ती बाद में उन्हें ख़तरनाक सिपाही बनाती थी। क़द्स दूसरों से मुख्तलिफ थे। जल्द ही क़द्स के अफसरान ने महसूस किया कि वो आम सिपाही नहीं। वो तेज़ी से सीखते थे, दबाव में पुरसुकून रहते थे और जंगी मशकों में नुमायां नजर आते थे। जंगी महारत का उभार। क़द्स खास तौर पर घोड़े पर लड़ने में माहिर हो रहे थे। वो तेज रफ्तार हमले करते, फौरन दिफा बदल लेते और मुखालिफ की कमजोरी जल्द समझ जाते थे। अंदर जलता हुआ गुस्सा। क़द्स ने बचपन में अपने खानदान की तबाही, मंगोल जुल्म और गुलामी सब कुछ देखा था। ये यादें उनके अंदर खामोश गुस्सा पैदा कर चुकी थी। मिस्र के बदलते हालात। इसी दौरान मिस्र के सियासी हालात खराब होने लगे। अयूबी सल्तनत कमजोर हो रही थी। दरबार के अंदर
साजिशें, इक़्तिदार की लड़ाइयाँ और फौजी इख्तिलाफात मुसलसल बढ़ रहे थे। ममलूक ताकत बढ़ने लगी। अगरचे हुक्मरान कमज़ोर हो रहे थे, मगर ममलूक फ़ौज मुसलसल ताकतवर बनती जा रही थी, क्योंकि असल ताकत अब तलवार रखने वालों के पास थी। क़द्स का नाम फैलने लगा। क़द्स कई फौजी मुहिम्मात में शामिल हुए। वो मैदान जंग में बहादुर, मुनज़्ज़म और सख्त फैसले करने वाले सिपाही के तौर पर मशहूर होने लगे। एतमाद हासिल करना। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममलूक अमीर भी क़द्स पर एतमाद करने लगे, क्योंकि वो सिर्फ लड़ते नहीं थे, बल्कि सोच कर लड़ते थे। दरबार की साजिशें। मिस्र के अंदर हालात मजीद खराब होने लगे। हुक्मरान बदल रहे थे। अमीरों में लड़ाइयाँ बढ़ रही थीं। हर शख्स इक़्तिदार चाहता था। खतरनाक माहौल। इस दौर में इक़्तिदार का मतलब सिर्फ हुकूमत नहीं था, एक गलती मौत बन सकती थी। इसीलिए हर अमीर मोहतात रहता, खुफिया इत्तेहाद बनाता और दुश्मनों पर नजर रखता था। क़द्स का उभार। क़द्स अब फौज के अहम लोगों में शुमार होने लगे थे। उनकी शख्सियत में सख्ती, एतमाद और क़ियादत वाज़े नजर आने लगी थी। एक नई तबाही की खबर। फिर अचानक ऐसी खबरें आना शुरू हुईं जिन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला दिया। मंगोल बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे। बगदाद खतरे में। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, वो अब्बासी खिलाफत का मरकज था, इल्म का मरकज था और इस्लामी दुनिया की अलामत समझा जाता था। 1258 सुकूत बगदाद। फिर वो दिन आ गया जिसने तारीख बदल दी। मंगोल बगदाद में दाखिल हो गए। शहर तबाह कर दिया गया। हजारों लोग कत्ल हुए। लाइब्रेरियां जल गईं और अब्बासी खिलाफत खत्म हो गई। खौफ की लहर। बगदाद की तबाही की खबर पूरे इस्लामी दुनिया में फैल गई। लोग खौफजदा हो गए, क्योंकि अब सब सोच रहे थे, अगला नंबर किसका होगा। शाम भी गिरने लगा। बगदाद के बाद मंगोल शाम की तरफ बढ़ने लगे। हलब और दमिश्क भी खतरे में आ गए। मुसलमान हुक्मरानों में इत्तेहाद नहीं था। कई लोग बगैर लड़े भाग रहे थे। मिस्र आखिरी बड़ी ताकत। अब सिर्फ मिस्र बाकी रह गया था। अगर मिस्र भी गिर जाता तो शायद मंगोल पूरे इलाके पर काबिज हो जाते। क़द्स की सोच। क़द्स जानते थे कि मंगोलों से भागकर नहीं बचा जा सकता, क्योंकि उन्होंने बचपन में उनकी तबाही अपनी आंखों से देखी थी। इक़्तिदार की तब्दीली। इसी खतरनाक वक्त में मिस्र के अंदर एक और सियासी बहरान पैदा हुआ। हुक्मरान कमजोर थे और मुल्क को मजबूत क़ियादत की जरूरत थी। क़द्स इक़्तिदार के करीब। फौज और ममलूक अमीरों ने महसूस किया कि इस वक्त एक मजबूत इंसान की जरूरत है। क़द्स की बहादुरी और सलाहियत सब देख चुके थे। सुल्तान क़द्स। आखिरकार क़द्स ने इक़्तिदार संभाल लिया। अब एक साबिक़ गुलाम, एक ममलूक सिपाही मिस्र का सुल्तान बन चुका था। इक़्तिदार संभालते ही खतरा। मगर क़द्स के पास जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि मंगोल मुसलसल आगे बढ़ रहे थे और अब खतरा मिस्र के दरवाजे तक पहुंच चुका था। हलाकू खान का पैगाम। जल्द ही मंगोल सरदार हलाकू खान की तरफ से पैगाम आया। इसमें धमकी दी गई थी, हमारे सामने झुक जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी बगदाद जैसा होगा। दरबार में खौफ। ये पैगाम सुनकर कई लोग खौफजदा हो गए। कुछ अमीरों ने कहा, सुलह कर लेनी चाहिए, जंग खुदकुशी होगी, क्योंकि इस वक्त तक मंगोल तकरीबन नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे। क़द्स का फैसला। मगर क़द्स खामोश खड़े रहे।
پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ 1258 اشاریہ کے بعد کی دنیا۔ بغداد تباہ ہو چکا تھا، عباسی خلافت ختم ہو گئی تھی، اسلامی دنیا خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ منگول جہاں جاتے شہر جل جاتے، لوگ قتل ہو جاتے اور حکومتیں ختم ہو جاتی۔ اب ان کی نظریں مصر پر تھیں۔ ہلاکو خان کا خوف۔ منگول سردار ہلاکو خان اس وقت دنیا کے خطرناک ترین حکمرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی فوج تیز رفتار تھی، بے رحم تھی اور مسلسل فتوحات حاصل کر رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے منگولوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ شام پر قبضہ۔ بغداد کے بعد منگول شام میں داخل ہوئے۔ حلب تباہ ہو گیا، دمشق بھی منگولوں کے قبضے میں چلا گیا۔ کئی حکمران بغیر لڑے بھاگ گئے۔ مسلمان دنیا میں خوف، ہر طرف صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی، اب مصر کا کیا ہوگا؟ کیونکہ مصر آخری بڑی مسلم طاقت رہ گیا تھا۔ قاہرہ میں بے چینی۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں خوف پھیلنے لگا۔ لوگ منگولوں کی کہانیاں سن رہے تھے، بغداد کی تباہی یاد کر رہے تھے اور آنے والے خطرے سے ڈر رہے تھے۔ سلطان قدس کی خاموشی۔ سلطان قدس یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر مصر بھی گر گیا تو شاید پورا خطہ منگولوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہلاکو خان کا پیغام۔ اسی دوران ہلاکو خان کی طرف سے ایک خط آیا۔ یہ صرف خط نہیں تھا بلکہ کھلی دھمکی تھی۔ اس میں لکھا تھا، ہم وہ لوگ ہیں جو شہروں کو تباہ کر دیتے ہیں، بادشاہوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور جو ہمارے سامنے نہ جھکے اسے مٹا دیتے ہیں۔ پھر آخر میں حکم دیا گیا، مصر ہتھیار ڈال دے۔ دربار میں خوف۔ جب یہ خط دربار میں پڑھا گیا تو کئی امیروں کے چہرے بدل گئے۔ کچھ لوگ بولے، منگولوں سے جنگ ممکن نہیں، صلح کر لینی چاہیے ورنہ مصر بھی تباہ ہو جائے گا۔ قدس کا غصہ، مگر قدس خاموش نہ رہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اگر ہم آج ڈر گئے تو کل ہمارا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ تاریخی فیصلہ۔ پھر قدس نے ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ منگول سفیروں کو قتل کر دیا گیا، ان کے سر قاہرہ کے دروازے پر لٹکا دیے گئے۔ یہ کھلا اعلان تھا، مصر لڑے گا۔ جنگ کی تیاری۔ اس کے بعد پورے مصر میں جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ فوج جمع کی گئی، ہتھیار تیار کیے گئے اور عوام کو بھی خطرے سے آگاہ کیا گیا۔ بیبرس کی واپسی۔ اسی دوران ایک اہم شخصیت دوبارہ سامنے آئی۔ بیبرس، وہ پہلے ہی بہادر سپہ سالار کے طور پر مشہور ہو چکے تھے۔ قدس جانتے تھے آنے والی جنگ میں بیبرس کی ضرورت ہوگی۔ قدس اور بیبرس دونوں کے درمیان سیاسی اختلافات موجود تھے، مگر اس وقت سب سے بڑا خطرہ منگول تھے۔ اسی لیے دونوں نے ساتھ مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جنگی منصوبہ۔ بیبرس نے مشورہ دیا، منگولوں سے کھلے میدان میں سوچے بغیر نہیں لڑنا چاہیے۔ اسی لیے ایک خاص مقام منتخب کیا گیا، عین جالوت۔ عین جالوت کیوں؟ یہ علاقہ فلسطین میں واقع تھا۔ وہاں پہاڑیاں تھیں، درخت تھے اور زمین مکمل کھلی نہیں تھی۔ یہ منگول گھڑ سواروں کی رفتار کم کر سکتا تھا۔ فوج کی تیاری۔ قدس نے فوج کا حوصلہ بلند کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سپاہیوں سے خطاب کیا، علماء کو ساتھ رکھا اور لوگوں کو بتایا، یہ صرف مصر کی جنگ نہیں، یہ پوری امت کی جنگ ہے۔ خوف ابھی بھی موجود تھا، اگرچہ تیاری ہو رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی، کئی لوگ اب بھی ڈرے ہوئے تھے۔
क्योंकि मंगोल अब तक तकरीबन हर जंग जीत चुके थे। फौज की रवानगी। आखिरकार ममलूक फौज मिस्र से रवाना हुई। सिपाहियों के चेहरों पर खौफ भी था, उम्मीद भी और अज़्म भी। रास्ते के मनाज़िर। रास्ते में कई तबाह इलाके नजर आते थे, जले हुए गांव, वीरान शहर और खामोश सड़कें। ये सब मंगोल हमलों की निशानियां थीं। क़द्स की खामोश सोच। कहा जाता है कि सफ़र के दौरान क़द्स अक्सर खामोश रहते थे। वो जानते थे अगर ये जंग हार गए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मंगोल फौज की हरकत। दूसरी तरफ मंगोल फौज भी आगे बढ़ रही थी। उनकी क़यादत कुतुबगा कर रहा था। मंगोलों को अपनी ताकत पर मुकम्मल यकीन था। मंगोल गुरूर। वो समझते थे ममलूक फौज भी बाकी सब की तरह टूट जाएगी, क्योंकि अब तक किसी ने उन्हें ऐसी शिकस्त नहीं दी थी। जंग से पहले की रात। ऐन जालूत के करीब रात छा चुकी थी। ममलूक लश्कर खामोश था। कुछ सिपाही दुआ कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे और कुछ खामोश बैठे आसमान देख रहे थे। बीबरस की हिकमत अमली। बीबरस मुसलसल जंगी मंसूबा समझा रहे थे। उन्होंने फैसला किया, पहले हमला किया जाएगा, फिर पीछे हटने का ड्रामा किया जाएगा, ताकि मंगोल जाल में आ जाए। क़द्स का खिताब। जंग से पहले क़द्स ने फौज से खिताब किया। उन्होंने कहा, आज अगर हम पीछे हटे तो हमारे बाद इस्लाम को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये अल्फाज सुनकर कई सिपाहियों की आंखें भर आईं। सुबह करीब थी। रात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और ऐन जालूत का मैदान तारीख की सबसे अहम जंगों में से एक का इंतजार कर रहा था। 3 सितंबर 1260 सुबह आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रही थी। फलस्तीन की सरजमीन पर वाक़े ऐन जालूत का मैदान खामोश खड़ा था, मगर इस खामोशी के पीछे खौफ था, बेचैनी थी और एक ऐसी जंग आने वाली थी जो पूरी तारीख बदलने वाली थी। 2 ताकतें आमने सामने। एक तरफ मंगोल फौज थी, वही मंगोल जिन्होंने बगदाद तबाह किया, शाम पर कब्जा किया और कई सल्तनतों को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ ममलूक फौज थी, जिसकी क़यादत सुल्तान क़द्स और बीबरस कर रहे थे। मंगोलों का एतमाद। मंगोलों को यकीन था कि आज भी वही होगा जो हमेशा होता आया है, दुश्मन टूट जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक दुनिया में कोई ताकत उन्हें मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकी थी। जंग का आगाज। सुबह के वक्त बीबरस ने पहला हमला किया। ममलूक घर सवार तेजी से आगे बढ़े। तीरों की बारिश शुरू हो गई और चंद ही लम्हों में मैदान जंग गर्दो गुबार से भर गया। शदीद टकराव। मंगोलों ने फौरन जवाब दिया। उनके घर सवार इंतहाई तेजी से हमला कर रहे थे। तलवारें टकरा रही थीं, घोड़े चीख रहे थे और हर तरफ जंग की आवाजें गूंज रही थीं। बीबरस की हिकमत अमली। कुछ देर बाद बीबरस ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। मंगोलों ने समझा ममलूक फौज शिकस्त खा रही है। इसी गुरूर में वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। जाल बंद हो गया, मगर यही असल मंसूबा था। जैसे ही मंगोल आगे बढ़े, छपी हुई ममलूक फौज अचानक निकल आई। अब मंगोल खुद घेरे में आ चुके थे। फैसला कुन लम्हे। शदीद लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से मुसलसल हमले हो रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि शायद मंगोल दोबारा संभल जाएंगे, मगर ममलूक फौज मुसलसल डटी रही। ममलूक फौज पर दबाव। एक वक्त ऐसा आया जब ममलूक सफों में कमजोरी आने लगी। चंद सिपाही पीछे हटने लगे। मंगोल जोर से आगे बढ़ रहे थे। सुल्तान क़द्स मैदान में
तब सुल्तान कत्स खुद घोड़े से उतरे। उन्होंने खुद अपना खुद उतारा और फिर पूरी ताकत से पुकारे, वा अस्सलामा, यानी ए इस्लाम। वो सदा जिसने तारीख बदल दी। कत्स की आवाज मैदान में गूंज उठी। सिपाहियों के दिल बदल गए। जो लोग पीछे हिट रहे थे वो दोबारा लड़ने लगे। आखिरी हमला। ममलूक फौज ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। मंगोल सफ़ें टूटने लगे। उनके कई अहम सरदार मारे गए और फिर कुतुबगा भी कत्ल हो गया। मंगोलों की पहली बड़ी शिकस्त। शाम होते होते जंग खत्म हो चुकी थी। मंगोल पहली बार इतनी बड़ी शिकस्त खा चुके थे। ये सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, ये खौफ के टूटने का लम्हा था। दुनिया हैरान रह गई। जब ऐन जालूत की खबर फैली तो कई लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहली बार मंगोल रुके थे। इस्लामी दुनिया में खुशी। मिस्र, शाम और दूसरे इलाकों में खुशी की लहर फैल गई। लोग जान चुके थे मंगोल नाकाबिले शिकस्त नहीं। कत्स की अजमत। सुल्तान कत्स अब पूरे इस्लामी दुनिया में हीरो बन चुके थे। एक साबिक गुलाम जिसने दुनिया की खतरनाक तरीन ताकत को रोक दिया था। वापसी का सफर। फतह के बाद ममलूक फौज मिस्र वापस रवाना हुई। सिपाहियों के चेहरों पर खुशी थी, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि आगे एक और खतरनाक वाकया उनका इंतजार कर रहा है। खामोश कशीदगी। वापसी के दौरान कत्स और बाज ममलूक अमीरों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे, खास तौर पर बीबरस और उनके साथियों के साथ, क्योंकि इक़्तिदार की सियासत अभी खत्म नहीं हुई थी। आखिरी दिन। रास्ते में एक शिकार के दौरान अचानक कत्स पर हमला हुआ। चंद लम्हों में सब कुछ बदल गया। सुल्तान कत्स कत्ल कर दिए गए। पुरस्रार मौत। तारीख में इस वाक़ये के मुख्तलिफ बयान मिलते हैं, मगर अक्सर रवायात में बीबरस का नाम सामने आता है। अगरचे मुकम्मल हकीकत आज भी बहस का मौजू है, मगर एक बात वाज़ेह थी, ऐन जालूत का फातेह अब दुनिया में नहीं रहा। मुख्तसर मगर अजीम हुकूमत। कत्स ने ज़्यादा अरसा हुकूमत नहीं की, मगर जितना वक्त मिला इसमें उन्होंने तारीख बदल दी। अगर वो मंगोलों के सामने न खड़े होते तो शायद मिस्र भी तबाह हो जाता।